Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. So today in this session we are going to discuss one of the burning issue which is happening in our neighborhood. Yes, is Bangladesh turning against the Bangla nationalism, or you can say nationalism? Now, when we talk about Bangladesh, so Bangladesh, which is a nation born out of the struggle for identity, culture and independence, but today, that very identity is being questioned in Bangladesh. Imagine a country which is rewriting its constitution and to erase the ideals it was founded upon, like secularism, socialism, nationalism. Now, can we say that is this the rebirth of a new Bangladesh or the shadow of its past creeping back? So stay with us as we unravel the dramatic shift that could redefine one of the South Asia's most resilient nations and why the silent around the transformation is deafening is there. Now, first we need to understand the background of Bangladesh. As we know that Bangladesh became an independent nation in 1971 after separating from Pakistan. And it was founded on the principles like secularism, socialism, and Bangla nationalism. That is the most important thing. And today, Bangladesh is rejecting the idea, rejecting the idea of a purely, and why they are rejecting the idea of this purely Islamic state. Now, its identity was tied to its language, which is the most important thing. Pakistan, when West and East Pakistan was there, so why Bangladesh was created? Because of Bangla language nationalism was there, and its cultural distinction from West Pakistan, where Urdu was the most important language. Now, what is happening now? What is going on in Bangladesh? So, in Bangladesh, interim government has appointed a constitution reform commission, which has proposed the major changes. Now, this Constitution Reform Commission, as you can see here on the screen, that Constitution Reform Commission ने major changes याद रखिएगा propose किए हुए हैं. अब ये changes कौन-कौन से हैं? Now, first try to understand. They have proposed the deletion of secularism, socialism, and nationalism from the fundamental principle. Now, this actually was among the few recommendations that are not a matter of institutional adjustment, but a drastic change in the principle. And if this is approved, that means Bangladesh is moving towards the religious identity in that case. So today, now this commission has actually proposed to replace this secularism, socialism, nationalism with new principles like equality, human dignity, social justice and pluralism. ये इन चीजों से रिप्लेस किया जाएगा. नाउ तो अब सवाल क्या उठता है? तो ये सारे चेंजेस यूनिस जी की गवर्नमेंट में आ रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट बांग्लादेश बर्थ व्हिच वाज बोर्न, so Bangladesh was there as a East Pakistan, but at that time East Pakistan was not as an independent nation. It was a part of West Pakistan. So Bangladesh birth not as independent East Pakistan, but as Bangladesh. And this is founded on Bangla nationalism based on language, which is irreconcilable with pure Islamic polity. But अब आज क्या हो रहा है? If you see the role of India, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया था? बिकॉज ऑफ बंगला नेशनलिज्म. दैट इज व्हाई इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान विद मिलिट्री इंटरवेंशन अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान. दैट वाज द सिनेरियो. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म? बिकॉज व्हाई नेशनलिज्म इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज नेशनलिज्म एक्चुअली डिस्टिंक्ट्स, it makes Bangladesh different from Pakistan, which is based on the idea of Islamic Holy Land. That is why this is important. So why this news is important? Secularism. Now you are removing this from Bangladesh. Secularism, if secularism is removed from Bangladesh, then इससे क्या होगा? बांग्लादेश धीरे धीरे रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेगा. एंड नेशनलिज्म को रिमूव करना, दैट मींस दिस इज वन ऑफ द बिगर इशू. दिस इज वन ऑफ द बिगर इशू. व्हाई? बिकॉज नेशनलिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971. नेशनलिज्म की वजह से ही
एक नया देश बना था 1971 में, और आप बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म को हटा दिया जाए। दिस इज द बिगर इशू, बिकॉज नेशनलिज्म वाज द फाउंडेशन ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस व्हिच सेपरेट it from West Pakistan, and these changes suggest that Bangladesh is shifting towards more Islamic political identity, and this can be described as baptismal reformation of Bangladesh. तो जब हम बात करते हैं इन सभी चीजों की, तो एक प्लूरलिज्म का क्लॉज ऐड किया गया है। कौन सा? एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश। कैसे? Bangladesh will be recognized as a pluralistic, multi-nation, multi-religion, multi-language and multicultural country. When you say multicultural country, तो वो आइडिया कहां गया जो बांग्ला नेशनलिज्म का था? Then there is a commitment to ensure dignity as well as coexistence of all communities. If this is the case, तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज, कितना ज्यादा माइनॉरिटी वॉयलेशन राइट्स चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहे हैं माइनॉरिटीज के बांग्लादेश में, हिंदूज के खिलाफ एंड अदर माइनॉरिटीज। क्लियर? तो अगर ऐसा सच में प्रपोज चेंजेस ये जो हैं अगर ये एक्सेप्ट कर लिए गए, तो बांग्लादेश एक प्योर इस्लामिक आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मीडिया किस चीज पर फोकस कर रही है? द फोकस इन द मीडिया हैज गॉन टू सेक्युलरिज्म एंड इट्स रिमूवल। मीडिया ने सबसे पहले फोकस किया है सेक्युलरिज्म और उसके रिमूवल पर, एंड जो ये कंफर्म करता है दैट बांग्लादेश इज मूविंग टुवर्ड्स द रिलीजियस डायरेक्शन। सो नेशनलिज्म, और दूसरी चीज, इफ नेशनलिज्म इज बीइंग डिलीटेड, दैट मींस दिस इज द रेपुडिएशन ऑफ द आइडिया जिस पर बांग्लादेश बना था, जिसकी वजह से इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू। तो वो आइडिया कहां जाएगा? बांग्लादेश का। अब अगर मैं आपको बांग्लादेश की रियलिटी के बारे में बताऊं, Bangladesh, the country, has officially been Islamic state in 1998. Bangladesh already, याद रखिएगा, 1988 में, सॉरी 1988 में ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट बन गया है। Now, secularism and socialism have not been in operation in Bangladesh. Yes. Now, अब secularism and socialism have not been active in the society for decades actually. So nationalism is harder to erase because it was essential to Bangladesh birth as a nation. तो ये काफी कठिन है नेशनलिज्म को हटाना, क्योंकि बांग्लादेश का बर्थ ही नेशनलिज्म पर हुआ है। And however, today's society is now prioritizes religion over national identity. आज सोसाइटी जो है वो प्रायोरिटाइज कर रही है रिलीजन को ओवर नेशनल आइडेंटिटी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है धीरे धीरे रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सोसाइटी है धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रही है? रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इस कमीशन के जो हेड है बांग्लादेश, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन के जो हेड है, हुज नेम इज अली रियाज, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि देखो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है दैट इट इज प्लूरलिज्म ऑफ कम्युनिटीज दैट शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट, कि बांग्लादेश हर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। ये कहा है अली रियाज जी ने, जो कि चेयर कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन को। तो अब इन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया? कमीशन क्या चाहता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन दैट इज अली रियाज, व्हिच इज हेडेड बाय अली रियाज, they want that Bangladesh to be described as a pluralistic, a multi-nation, a multi-religion, multi-language and multicultural country. Now this challenges the nationalism by emphasizing diversity, but Bangladesh is one of the most mono-ethnic, which is dominated by a single ethnicity countries in the world. इसीलिए इस कमीशन के वर्क को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है ना? तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स? फोकस ऑन सेक्युलरिज्म, सबसे ज्यादा मीडिया फोकस कर रही है सेक्युलरिज्म पर, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म को रिमूव कर दिया गया, विच इट्स रिमूवल अलाइंस विद बांग्लादेश ग्रेजुअल रिलीजियस टर्न, सो इफ सेक्युलरिज्म इज रिमूव्ड देन बांग्लादेश विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स रिलीजियस आइडेंटिटी। सेकेंड, लॉस ऑफ नेशनलिज्म, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना है उसी को हटा दोगे। It is seen as a repudiation of foundational Bangla nationalism, and it aligns with Islamic global sovereignty over national identity.
एंड व्हाट इज द हिस्टोरिकल रियलिटी? हिस्टोरिकल रियलिटी अभी मैंने आपको बताया दैट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ऑलरेडी इन एक्टिव फॉर डिकेड्स एंड बांग्लादेश हैज ऑलरेडी बिकेम इस्लामिक इन 1988 एंड शेख हसीना ने भी इस चीज को बताया था सोशलिज्म के बारे में कि बांग्लादेश में सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी ज्यादा प्रिवेल नहीं करती। क्लियर? तो ये बात शेख हसीना ने भी कही थी। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश विच वाज नॉट बोर्न एज इंडिपेंडेंट ईस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट पाकिस्तान बना था देन एट दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट इंडिपेंडेंट, इट वाज अ पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ओनली। Clear? So Bangladesh was born in 1971 as, remember this thing, as independent nation. Now it took birth as something irreconcilable with pure Islamic polity. It was based on nationalism. Clear? As a nation. So Bangla nation बना था, बांग्लादेश as a nation बना था। तो आज धीरे धीरे जो सोसाइटी में लोग रिलीजन की तरफ जिस तरह से मुड़ रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये देश जो है, बांग्लादेश जो है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहा है। सो बांग्लादेशी नेशनलिज्म इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस बांग्ला स्पीकिंग ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान होली लैंड रिलीजन पे जो बना था, तो इसीलिए याद रखिएगा, आज धीरे धीरे याद रखिए, अब इसीलिए अली रियाज जी ने क्या कहा, नेशनलिज्म इज एवरीवेयर एन इम्पेडिमेंट टू इस्लाम। नेशनलिज्म हर जगह, इट इज एन इम्पेडिमेंट टू इस्लामिज्म। इसीलिए इन्होंने बात की है किस चीज की, उम्मा की, है ना, जिस प्रिंसिपल पर हमस बना है एंड अदर इस्लामिक कंट्रीज, कहा कि इस्लामिक नेशन जो है इस्लाम में, दे हैव मोर प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप विद नेशनलिज्म। तो इसीलिए ये बात कर रहे हैं किस चीज की, नेशनलिज्म को हटाने की बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? अब धीरे धीरे इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इस्लाम की तरफ, इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस्लामिज्म एंड नेशनलिज्म बोथ आर इनकम्पैटिबल। नेशनलिज्म इंपीड्स द आइडिया ऑफ इस्लामिक उम्मा सोवरेनिटी, ये कहा है अली रियाज जी ने, है ना, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टी फ्रेमवर्क इस्लामिक सोसाइटीज। अब इन्होंने ये भी कहा है, इस्लामिक सोसाइटीज जो है दे एक्सेप्ट प्लूरलिज्म एंड struggle, but these societies struggle with egalitarian coexistence. इसीलिए there is a risk of dhimmitude for minorities under Islam majoritarianism. अब ये dhimmitude क्या है, ये वर्ड आया है न्यूज़पेपर में। dhimmitude ये एक डिफाइनिंग रिलेशन होता है मुस्लिम और माइनॉरिटीज के बीच में। मतलब इसमें ये एश्योरेंस दिया जाता है, द एश्योरेंस ऑफ प्लूरलिज्म इज गिवन, कि और ये इंश्योर करता है कि जो बिलीवर्स हैं बांग्लादेश में, they can coexist with the unbeliever also. Believer can coexist with unbeliever. Believer Muslims, unbelievers non-Muslims. Clear? But this cannot happen under peaceful conditions. ये सभी को पता है कि ये चीजें peaceful conditions में कभी भी नहीं होती। तो इस बार dhimmitude वर्ड का यूज किया गया है। तो अली रियाज जी जो हेड हैं कमीशन के, जो कि एक्सपर्ट है नेशनलिज्म और इस्लामिज्म पे, दे सपोर्ट, ही सपोर्टिंग प्लूरलिज्म ओवर नेशनलिज्म। अब क्रिटिक्स ने कहा है दैट व्हाई ही इज बैकिंग द चेंजेस दैट वीकन्स द बांग्लादेश ओरिजिनल आइडेंटिटी, कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन है सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स, इसके पीछे रीजन है पब्लिक एंड पॉलिटिकल रिएक्शंस। नाउ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बांग्लादेश हैव बीन साइलेंट. They may be waiting to see public opinion before taking a stand. So, for example, small left-wing parties, they have opposed the changes, but mainly focus on defending secularism and socialism. That's it. Left parties, they are just defending small changes, secularism and socialism. Now, the media has been strangely quiet. Media भी चुप है इस इशू पर। Suppose करो अगर इंडिया में बात हो गई होती सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, इन सभी चीजों को लेके, मीडिया में कितना बवाल मच गया होता। यहां पर मीडिया शांत है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। समझ में आ रहा है? सो मीडिया हैज बीन स्ट्रेंजली क्वाइट, अनलाइक इन द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रिमूविंग सेक्युलरिज्म वुड हैव बीन बिकम अ मेजर डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एक्चुअली। सो दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है वो काफी टेंस सिचुएशन है, जहां पर याद रखिएगा कि वहां के लीडर्स भी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं। सो इवन अली रियाज, ही इज आल्सो सपोर्टिंग इस्लामिज्म
डिस्पाइट हिज एकेडमिक बैकग्राउंड इन सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म। अली रियाज का बैकग्राउंड किसमें है? सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म है, डिस्पाइट ही सपोर्टिंग इस्लामिज्म। मोहम्मद यूनुस की बात ले लीजिए, अगर आप प्योरली इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, इस्लाम में तो क्रेडिट देना है ना, इंटरेस्ट लेना वो भी हराम है। और मोहम्मद यूनुस जो कि नोबल लॉरिएट हैं, ही एंड हिज बैकग्राउंड इज फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस ओनली। तो क्रिटिक्स को यह भी तो लगता है ना दैट ही इज एन इस्लामिस्ट। Critics doubt that he is an Islamist because his career is linked to microfinance, which goes against the Islamic teachings on finance. But however, his recent actions such as like downplaying communal violence, which raise questions about his stand. तो इन सभी चीजों का बांग्लादेश के लिए मतलब क्या है, तो आइए समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जुलाई अपराइजिंग सेंटिमेंट, लाइक in this sentiment it has been recognized that there is decline in nationalist sentiment, लोगों के अंदर से nationalism धीरे धीरे decline हो रहा है, and there is rise of religious over national priorities and which is not correct for the nation. Then silence from major parties, अभी मैंने आपको बताया वहां की मेजर पार्टीज चुप हैं इस चीज पर, इस प्रपोजल पर भी शांत है, टेकिंग पब्लिक सेंटिमेंट बिफोर टेकिंग द पोजीशन। सिर्फ लेफ्ट वाली जो पार्टी है वो सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म के बारे में। देन रोल ऑफ लेफ्ट विंग पार्टीज, दे क्रिटिसाइज प्रपोजल बट देयर फोकस इज ऑन आउटडेटेड आइडियल्स लाइक सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। क्लियर? तो बांग्लादेश में जो अभी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा टेंस है। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मीडिया में भी ज्यादा इसकी बात नहीं चल रही है। अब ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहां गए, मीडिया वाले कहां गए? देयर इज लैक ऑफ डिबेट ऑन दिस व्हिच इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिस्कशन इन बांग्लादेश मीडिया। व्हाट अबाउट इस्लामिक पब्लिक स्फीयर डायनेमिक्स? अब मॉडरेट मुस्लिम्स, अब दो तरह की आइडियोलॉजी होती है हर रिलीजन में, एक मॉडरेट होते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। नाउ मॉडरेट मुस्लिम्स दे अवॉइड क्रिटिसाइजिंग एक्सट्रीमिज्म डायरेक्टली, ये डर रहे हैं डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म को क्रिटिसाइज करने से, and there is complicity by silence and distraction. Ali Riaz role, he shifted from a scholar to perceived rubber stamp for Islamist. तो जो इंसान स्कॉलर था सेक्युलरिज्म नेशनलिज्म का, वो आज इस्लामिस्ट स्कॉलर बन रहा है। तो ये पूरी तरीके से शिफ्ट आ चुका है कहां पर? बांग्लादेश में। तो अगर हम ग्लोबल एंड रीजनल इंप्लीकेशंस की बात करें, इट इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन बांग्लादेश। कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है? चलिए इन सभी चीजों का मतलब क्या है बांग्लादेश के लिए? सो द प्रपोज चेंजेस, इट शोज अ शिफ्ट फ्रॉम सेक्युलर nationalist foundation of Bangladesh towards a more religious and pluralistic identity, and this pleases the Islamists but raises the concern about majoritarianism and the future of country's founding principles. ये सबसे बड़ा इशू है यहां पर। तो अब इसके ग्लोबल और रीजनल इंप्लीकेशन क्या होंगे? बांग्लादेश आइडेंटिटी क्राइसिस, दैट मींस there is the potential that Bangladesh may return to East Pakistan, but East Pakistan was not independent. But here Bangladesh may return to East Pakistan ideology with independent status. Clear? Without formal loss of independence. Second, Islamism versus pluralism. So there is struggle for democratic and peaceful coexistence under Islamic majoritarian state. And the last, economic ironies, microfinance. यूसुफ किससे बिलोंग करते हैं? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, विच इज अगेन दिस इज अंडर द थ्रेट फ्रॉम स्ट्रिक्टर इस्लामिक गवर्नेंस। तो अगर आप ऐसी आइडेंटिटी बनाओगे देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस इवन योर प्रोफेशन एज पर द आइडियल्स ऑफ इस्लाम। क्लियर? तो जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ही इज अनलाइकली टू बी एन इस्लामिस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल बैकग्राउंड। इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है? His professional background thrives on credit industry, and credit industry, याद रखिए, इस जो ब्याज होता है, ब्याज खाना, that is haram in Islam. Clear? This is typically haram profession in most doctrinaire version of Islam. And to become an Islamist, he would likely to have to repudiate his entire career at least in front of his new comrades. तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये कहानी है बांग्लादेश की जो चल रही है। सो इफ वी सी दीज थिंग्स, सो बांग्लादेश जर्नी
from the ashes of East Pakistan to its current crossroad is a story of a struggle, triumph, and now uncertainty. So, as nationalism fades and religions takes the center stage, so as we are witnessing this evolution of pluralistic society or the rise of a new majoritarianism in Bangladesh, so the world is watching. Will Bangladesh hold on to its founding principle or rewrite its identity or destiny? So let us know your thoughts in the comment section below, because conversation matters more than ever now. Thank you so much.